Hello everyone, welcome back to my English channel. Many students have requested me to make a separate video for all the exercises of chapter 1 titled Monkey Trouble written by Ruskin Bond. तो मैं आज लेकर आ गया हूं क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो. We will do all the questions like horse, life skills, writing sections, etc. So I request you to take out your notebook and write all the things and don't skip the video. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. सम स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द स्टोरी आर गिवन बिलो. टिक टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स आफ्टर मेकिंग करेक्शंस. तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें कुछ गलतियां भी हैं और कुछ सही भी हैं. तो जो गलती है उसको तो फॉल्स कर देना है, पहले टिक कर देना है फॉल्स वाले पे, और फिर उसमें जो सुधार होगा वो सुधार करना है आपको. और बाकी जो ट्रू है तो उसमें कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं करना है. चलिए. दैट द स्ट्रीट एंटरटेनर हु सोल्ड टू हैड 3 अदर मंकीज. तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 2 होगा. तो ये सेंटेंस को पूरा रीराइट करना है आपको. जैसे मैंने लिखा है, द स्ट्रीट एंटरटेनर हु सोल्ड टू हैड 2 अदर monkeys, और फॉल्स वाले को टिक कर देना है. नेक्स्ट. रॉकी ऑफन गेव चॉकलेट्स एंड वॉलनट्स टू द नरेटर. तो रॉकी चॉकलेट्स तो देता था लेकिन वॉलनट्स नहीं देता था, वो कैश्यू नट्स देता था. तो पूरे सेंटेंस को रीराइट करेंगे. रॉकी ऑफन गेव चॉकलेट्स एंड कैश्यू नट्स टू द नरेटर एंड टिक फॉल्स. Rocky took Aunt Ruby to a jeweler's shop for buying an engagement ring. This sentence is right. Tutu followed the narrator to the jeweler's shop without being noticed. This is also right. Tutu put some herbs and spices in the wedding cake. तो हर्ब्स एंड स्पाइसेस वो पहले मिलाता था, लेकिन वेडिंग केक में उस दिन उसने मिलाया है चिली सॉस, बीटर गार्ड सीड्स और बहुत ज्यादा मात्रा में एग शेल्स. सो रीराइट दिस सेंटेंस एंड टिक फॉल्स. योर सेकेंड क्वेश्चन इज that is B. Answer the following questions in not more than 30 words each. How was grandmother convinced to keep Tutu as a pet? Grandmother had always wanted a little girl in the house. She believed girls were less troublesome than boys. When she came to know that Tutu was a little girl monkey, she was convinced to keep her as a pet. You can take a screenshot here and write the answer. Why did the narrator follow Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop? What reason did Tutu have for following them? The narrator wanted to go along with them to buy engagement ring, but Aunt Ruby had made it clear that she did not want him around. So he followed them secretly. Tutu, becoming aware that a mission of some importance was underway, decided to follow them. Why did the people in the bazaar chase Tutu? Tutu put a pearl necklace round her neck and ran away. Rocky, the jeweler, and several people in the market followed her who had seen the incident, and others who had no idea what it was all about were playing follow the leader even when
they didn't know who was leading. Take a screenshot here. What did Tutu do with the necklace? How was it restored to the shopkeeper? टूटू ने नेकलेस के साथ क्या किया और वो वापस शॉपकीपर के पास कैसे गया? टूटू took a pearl necklace from a jeweler's shop and created a huge mess in the market. Finally, she threw the necklace into a kennel. Rocky dived into the kennel, trashed the necklace, and returned it to the shopkeeper. Why do you think some guests were not seen for several days after the marriage? Tutu mixed some red chili sauce, bitter gourd seeds, and some eggshells in the cake. I am sure that the people who ate the cake fell sick and were not seen for several days. But no one complained about the cake because they thought it had an interesting flavor. Now come to C. The sentences below give an account of the menace that Tutu created in the bazaar, but the sentences are jumbled. Rearrange them by writing appropriate serial number in the box provided against each statement. The opening sentence is given. Tutu followed Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop. और उसके बाद ये पूरी कहानी आपकी दी हुई है जो कि जम्बल्ड है, मतलब कि ये सीरियल नंबर में नहीं है, सीरियल वाइज नहीं है, तो आपको इसको सीरियली आपको अरेंज करना है। तो देखिए मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। यहां से आप नोट कर लीजिए 5 6 1 4 8 7 9 3 10 2। फिर से देख लीजिए 5 6 1 4 8 7 9 3 10 2। And after arranging it in serial way, just go through the story and it will be cleared. Next is horse. Some animals have a sharp mind. They amaze us by their actions. Do you think they are able to think in the right direction? Why or why not? कुछ जानवरों के पास बहुत शार्प माइंड होता है और वो अपने एक्शन से, एक्टिविटी से हमें बिल्कुल अचंभित कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि जानवर हमेशा राइट डायरेक्शन में सोचते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। To some extent, animals can think and they also have feelings of love and emotions, but it doesn't mean that they are always able to think in right direction. तो कुछ हद तक तो जानवर जो है सोचते हैं, उनके पास फीलिंग भी होता है, इमोशन भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही राइट डायरेक्शन में सोचेंगे। It's only humans who have developed their minds to such an extent that they can take right decisions. Now, life skills. Do you like Tutu? If given a chance, would you like to keep her as a pet? क्या आप टूटू को पसंद करते हैं? और अगर आपको मान लीजिए मौका दिया जाता है कि टूटू का आप पेट बना लीजिए, तो क्या आप उसको पेट बनाएंगे? देखिए मैंने क्या आंसर लिखा है। यस, आई लाइक टूटू इन द स्टोरी। मैंने टूटू को स्टोरी में पसंद किया है, बट आई डोंट लाइक हर टू बी माई पेट बिकॉज शी इज मिस्चीवस एंड कैन कॉज डैमेज टू माई बिलोंगिंग्स। क्योंकि वो काफी शरारती थी
और वो मेरे घर में जो सामान है, जो मेरे बिलोंगिंग्स है, उन सबको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मैं उसे पेट नहीं बना सकता। यहाँ पे आंसर आपका खुद का भी हो सकता है, यू कैन राइट इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। अगर आप लिखने में सामर्थ्य है तो लिखिए, वरना आप सेम ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूज। द नरेटर decided to secretly follow Aunt Ruby and her fiancé Rocky to the market. Is he justified in doing that? जो नरेटर हैं वो आंट रूबी को सेक्रेटली फॉलो करते हैं, मतलब कि छुप कर फॉलो करते हैं मार्केट में। तो क्या ये उन्होंने ठीक किया है? चलिए देखते हैं आंसर। No, the narrator was not justified in secretly following Aunt Ruby and her fiancé Rocky to the market because she had made it clear that she did not want him around. यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैड होगा, प्लीज पे अटेंशन। had made it clear that she did not want him around. Moreover, it was because of him that Tutu followed them and caused a lot of mess at the jeweler's shop. Now, writing skills. Tutu took a pearl necklace from a jeweler's shop and created a huge mess in the market before finally throwing it into a kennel. The jeweler felt quite tense about the whole episode. Write the jeweler's diary entry describing how he felt at Tutu's mischief. तो ये क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। टूटू ज्वेलर्स के शॉप से नेकलेस लेके भाग गया और बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट किया, और फाइनली वो क्या किया कि वो केनल में जाकर उसको डाल दिया। और जो ज्वेलर था वो काफी टेंस में था, मतलब बहुत परेशान था, परेशानी में था, मतलब कि वो घबरा गया था पूरा बिल्कुल। तो एज ए ज्वेलर आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, उसमें आपको अपना फीलिंग लिखना है, उसमें टूटू के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो जब हम डायरी लिखते हैं तो सबसे पहले डेट एंड डेट, उसके बाद टाइम लिखते हैं, और डायरी हमेशा रात में ही लिखा जाता है क्योंकि हम सोने से पहले लिखते हैं, तो टाइम रात का ही होता है। फिर लिखना होता है डियर डायरी, फिर हम अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। चलिए, आई हैड नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट सच एन इंसिडेंट वुड अकर इन माई लाइफ। मैंने बिल्कुल ही कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा घटना मेरे साथ होगा। माई हार्ट बीट्स एट फास्टर स्पीड, मेरा जो दिल है वो काफी तेजी से धड़कता है। वेन द पिक्चर ऑफ डेट मिस्चीवियस मंकी अपीयर्स बिफोर मी, जब उस मिस्चीवियस, उस शरारती मंकी का जो पिक्चर है वो मेरे सामने आता है तो बहुत ज्यादा मुझे घबराहट होती है। I was busy showing some jewelry to customers when a monkey named Tutu came inside my shop and took a pearl necklace and created a huge mess in the market before finally throwing it into a kennel. तो मैं क्या कर रहा था कि मैं कुछ कस्टमर्स को ज्वेलरी दिखा रहा था, उतने में एक बंदर आया जिसका नाम था टूटू, और उसने क्या किया कि एक पर्ल नेकलेस वहां से ले लिया और बिल्कुल हंगामा मचा दिया, और वो फाइनली कहां जाकर डाल दिया, उसको किनल में डाल दिया। आई थॉट आई वुडंट बी एबल टू गेट इट बैक, मुझे लगा कि अब तो मुझे मिलेगा नहीं। बट द एफर्ट ऑफ माई कस्टमर मिस्टर रॉकी, रॉकी का स्पेलिंग यहाँ पे गलती है, ROCKY होगा, रॉकी, ब्रॉट इट बैक, वो लेकर के वापस लाए। ही डाइव्ड इनटू द केनल, ट्रेस्ड द नेकलेस एंड रिटर्न इट टू मी, वो केनल में डाइव किए, नेकलेस को उन्होंने ढूंढा और फिर मुझे उन्होंने वापस कर दिया। आई वुडंट बी एबल टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट इन माई लाइफ ज्वेलर, मैं इस घटना को कभी भूल नहीं पाऊंगा ज्वेलर। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा दो स्पेलिंग मिस्टेक था, यहाँ पे रॉकी का स्पेलिंग मिस्टेक था, इसको ध्यान दीजिएगा।
Okay, see you in next video. Till then, goodbye.